ابھی میں خط لکھ کر فارغ ہوا تھا کہ باہر سے کریم کا نعرہ گونجا، عبداللہ بھائی کدھر ہو؟ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ میں حیرت کے عالم میں درگاہ کے دروازے سے باہر نکلا تو سامنے اس رات والے موٹر سائیکل گروپ کے نعمان اور اسی شریر سی چوئنگم چباتی لڑکی کو کھڑے پایا جو اس رات بھی نعمان ہی کی بائک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے ان دونوں کو دیکھ کر مجھے ایک انجانی سی خوشی کا احساس کیوں ہوا۔ میں نے گرم جوشی سے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ لڑکی کا تعارف نعمان نے ٹینا کہہ کر کروایا۔ ٹینا درگاہ کے صحن میں داخل ہوتے ہوئے کچھ ہچکچا رہی تھی۔ میں نے نعمان کو اشارہ کیا کہ وہ ٹینا کا ہاتھ پکڑے درگاہ میں داخل ہو گیا۔ ہم صحن ہی میں ایک جانب درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ ٹینا نے آس پاس حیرت سے دیکھا۔ آپ یہاں رہتے ہیں؟ بور نہیں ہو جاتے؟ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ بہت بور ہوتا ہوں، کبھی کبھی تو اتنا بور ہوتا ہوں کہ خود بوریت بھی مجھ سے بور ہو کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ وہ دونوں میری بات سن کر ہنس پڑے۔ نعمان نے بتایا کہ وہ حسب وعدہ مجھ سے اپنی بائک کے بارے میں معلومات لینے آیا ہے۔ میری طرح وہ بھی ہیوی بائکس کا دیوانہ لگتا تھا۔ میں نے بہت تفصیل سے اسے تمام معلومات سے آگاہ کیا اور ہر پرزے کی الگ الگ خصوصیات بھی بتائیں۔ نعمان اور ٹینا دونوں ہی بہت غور اور دلچسپی سے میری باتیں سنتے رہے۔ نعمان نے مجھے بتایا کہ اس نے حال ہی میں شپ کے ذریعے یہ بائک جرمنی سے منگوائی ہے، اس لیے اسے شروع میں اسے سنبھالنے میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ایک بار مولوی خضر بھی کسی کام سے درگاہ آئے اور انہوں نے نعمان اور ٹینا کو دعا بھی دی۔ شام ڈھلے وہ دونوں رخصت ہوئے تو بہت خوش تھے۔ ٹینا نے تو باقاعدہ درگاہ کی زندگی میں ایک انگریزی اخبار پر فیچر لکھنے کا پروگرام بھی بنا لیا تھا اور نعمان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھ سے ملنے دوبارہ آئے گا۔ جانے کیوں میں اسے یہ نہیں بتا سکا کہ اب جب وہ یہاں آئے گا تو شاید مجھ سے اس کی ملاقات نہ ہو، کیونکہ 2 دن کے بعد ہی تو جمعرات تھی، میری اس درگاہ میں آخری جمعرات۔ لیکن اگلے 2 دن میرے لیے بہت ہی کٹھن ثابت ہوئے۔ اس رات مولوی خضر کو شدید بخار نے آ گھیرا اور ان کی تیمارداری اور دیگر امور کو نمٹانے میں وقت کچھ یوں گزرا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کریم بھی اپنی کشتی لے کر 4 دن کے لیے کھلے سمندر میں جال ڈالنے کے لیے جا چکا تھا، لہٰذا مجھے اپنی مالاؤں کے ساتھ ساتھ مولوی خضر کی تنکوں کی بنی ہوئی ٹوپیاں بھی بیچنے کے لیے جمعرات کو خود بازار جانا پڑا۔ ہمارا طریقہ کار بھی وہی ہوتا تھا جو باقی مچھیرے اپنا بازار سجانے کے لیے اختیار کرتے تھے، یعنی ساحل پر کسی چادر یا لکڑی کے تختے وغیرہ پر مال لگا کر گاہک کا انتظار کرنا۔ لیکن نہ جانے اس دن ایسی کیا بات تھی کہ کوئی خریدار میری طرف رخ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اوپر سے جمعرات کی وجہ سے درگاہ میں زائرین کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سیڑھیوں سے کچھ فاصلے ہی پر اپنی مالائیں اور مولوی خضر کی ٹوپیاں سجائے بیٹھا درگاہ کی سیڑھیوں سے اوپر جاتے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے اوپر صحن میں موجود خدمتگار ٹھیک سے اپنا کام کر رہے ہوں گے یا نہیں۔ مجھے زیادہ فکر یہ تھی کہ اثر سے پہلے اگر میں اپنی چیزیں بیچ نہیں سکا تو نظر و نیاز کا معاملہ کون بھگتائے گا۔ عبداللہ نے جاتے وقت سختی سے مجھے اس معاملے کو ذاتی طور پر نمٹانے کا کہا تھا، کیونکہ یہ اچھی خاصی رقم کا معاملہ تھا اور لوگوں کی بہت سی امانتیں ہمارے سپرد ہوتی تھیں۔ ایسے میں کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اسی شش و پنج میں بیٹھا جانے کیا سوچ رہا تھا کہ اچانک کسی راہگیر کی ٹھوکر لگی اور میری ساری مالائیں زمین پر بکھر گئیں۔ چند ایک کے دانے بھی لڑی سے علیحدہ ہو کر ریت پر دور تک بکھر گئے۔ نقصان بھی میرا ہوا تھا، لیکن اس پر بھی وہ صاحب جو غالباً اپنی بیگم کو درگاہ کی زیارت کے لیے لے کر آئے تھے مجھ ہی پر بگڑنے لگے۔ غضب خدا کا، سارا راستہ ان لوگوں نے بند کر رکھا ہے۔ زیارتوں جیسی مقدس جگہوں کو بھی انہوں نے کاروبار کا اڈا بنا رکھا ہے۔ بیگم ہم تو کہتے ہیں انہی لوگوں کے بھیس میں وہ چور اچکے بھی چھپے ہوئے ہیں جن میں سے ایک نے پچھلے ہفتے آپ کا پرس چھین لیا تھا۔ وہ جانے کیا اول فول کہے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی مالائیں چنتے ہوئے ان سے دھیرے سے بس یہ کہا، آپ جائیں یہاں سے، میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن ان کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔
अब आस पास के लोग भी तमाशा देखने के लिए जमा होने लगे थे। नहीं, चले कैसे जाएं? हम तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलकर ही जाएंगे। यूं रास्ता बंद करने का आखिर मतलब क्या हुआ? कैसी खुली बदमाशी का बाजार गर्म कर रखा है तुम लोगों ने। आज मैं इसका बंदोबस्त करके ही जाऊंगा। मैं सर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा, क्योंकि मैं उस वक्त अब्दुल्ला था। अगर अब्दुल्ला की जगह साहिर होता तो ना जाने अब तक क्या हो चुका होता। लेकिन अगर साहिर होता तो वो भला यूं बाजार में आम मज़दूरों की तरह मज़दूरी करने क्यों बैठा होता? वो साहब यूं ही गरजते बरसते रहे। अब उनकी बेगम और बाकी भीड़ ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया था कि चलें, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दें। भीड़ ने यह भी महसूस कर लिया था कि मैं बिना कुछ कहे सर झुकाए उन साहब की तमाम सलावातें सुन रहा हूँ। अब हुजूम में से एक आध शख्स ने बाकायदा उन साहब को झाड़ कर कहा कि लड़का खामोश खड़ा कब से आपकी गालियाँ सुन रहा है, लिहाजा शराफत का यही तकाजा है कि अब आप भी यहाँ से आगे बढ़ जाएं। लिहाजा खुदा खुदा करके बादल नख्वास्ता उन साहब ने कदम आगे बढ़ाए और मैंने लंबा सा सांस लेकर अपनी नज़रें उठाईं और फिर मेरी नज़र किसी की नज़र से टकराकर जम सी गई। जब वो साहब दिल खोलकर मेरी बेइज्जती कर रहे थे और मैं सर झुकाए खड़ा था, तब ना जाने किस वक्त जहरा अपनी माँ और खादमा के साथ वहाँ से गुजरते हुए शायद भीड़ को देखकर ठिठकी थी। ये सारा तमाशा दरगाह की सीढ़ियों के करीब उसी रास्ते पर हो रहा था जो उस मारुख की राह गुजर थी। मतलब ये कि उसने मेरी रुसवाई का ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। जहरा की वालदा तो ज़्यादा मेरी नज़र का सामना नहीं कर पाई और मुंह में चादर का पल्लू दबाए सिसकती हुई वहाँ से खादमा समेत आगे बढ़ गईं। लेकिन संगे मरमर की वो मूरत वहीं जमी खड़ी मुझे देखती रही। चंद घड़ियों ही में न जाने कितने तूफ़ान गुजर गए। पता नहीं ये मेरे अंदर की शदीद बेबसी का एहसास था, अपनी रुसवाई का गम, या फिर उस बेरहम की नाकदरी का शिकवा। लेकिन ना जाने क्यों पल भर में ही मेरी आंखों से बेक वक्त 2 आंसू निकले और शायद नीचे रेतीली ज़मीन के बजाय उस नाज़नीन के दिल पर टपके। मेरी ज़बान ने आज तक कभी उससे शिकवा नहीं किया था, पर मेरी आंखों ने शायद उस पल अपनी सारी कहानी कह डाली। फिर जहरा से भी वहाँ रुका नहीं गया और वो अपनी पलकें भीगने से पहले ही तेज़ी से आगे बढ़ गई। मैं भी बोझल दिल के साथ ऊपर दरगाह चला गया। मेरे अंदर चंद लम्हों में इतनी ज़्यादा टूट फूट हो चुकी थी कि अब मेरा दिल किसी काम में भी नहीं लग रहा था। लिहाजा मैंने तमाम काम मौलवी खज़र के उस शागिर्द के हवाले कर दिए जो जुमेरात के रोज़ खुसूसी तौर पर मेरी मदद के लिए दरगाह आता था। हत्ता के असर के बाद नज़र इकट्ठी करने के लिए भी अपने कमरे में नहीं गया। शाम ढल रही थी और मैं निढाल सा आंखें मूंदे दरगाह के सहन के एक पोशीदा गोशे में दीवार के साथ टेक लगाए बैठा हुआ था। दफतन किसी के कदमों की हल्की सी छाप हुई। मैंने चौंक कर आंखें खोली। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मेरा जिस्म शल सा हो गया। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। आप मुझसे जीत गए। मैं हैरत से गंग बैठा रहा। न जाने वो कौन सी जीत की बात कर रही थी। मैं तो अपनी आखिरी बाजी भी हार चुका था। मैंने शिकवा किया, ताना दे रही हैं? नहीं नहीं, वो जल्दी से बोली, ताना नहीं है, एतराफ़ है। मैंने आज तक सिर्फ अपनी लगन को दुनिया की सबसे सच्ची लगन माना है और दुनिया का हर जुनून मुझे अपने जज्बे के सामने हीच और कमतर लगता था। लेकिन आज मैं ये एतराफ़ करती हूँ कि आपका जज्बा और आपकी लगन शायद इस दुनिया ही से मावरा है। मेरी हालत इस वक्त उस सिपह सालार सी थी जो ज़ख्मों से चूर होकर ज़मीन पर गिर चुका हो। सांसें धीरे धीरे टूट रही हों, मगर सांसों से उड़ती खाक के पसे मंज़र में मरने से कुछ लम्हे पहले अपनी फ़ौज को किले पर फ़तेह का झंडा लहराते हुए भी देख रहा हो। जहरा की आंखों में आंसू थे और आज वो सितमगर भी मेरे जुनून की दाद दे रहा था जिसने मुझे दीवानगी की इस हद तक पहुंचाया था। उसे रोते देखकर मैं घबराकर खड़ा हो गया।
لیکن میرے لفظ جیسے کہیں کھو سے گئے۔ آپ یہ کیا؟ دیکھیں آپ کے آنسو پلیز۔ میں اسے کیا کہتا؟ خود میری آنکھیں یوں بہہ رہی تھیں جیسے سارے بند آج ہی ٹوٹے ہوں۔ کتنی عجیب بات تھی، ہم دونوں کا درد جدا بھی تھا اور مشترک بھی، اور ستم ظریفی یہ بھی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو بے وفائی کا الزام بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اتنے میں زہرا کی ماں اور ہڑبڑائی ہوئی سی خادمہ بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں چلی آئیں۔ انہوں نے شاید معاملہ کچھ بھانپ لیا کہ میری حالت زار نے ان کی پتھر دل بیٹی کے سینے پر بھی پہلی چوٹ مار دی ہے۔ انہوں نے جب میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو ہاتھوں کی لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بولی تو لہجہ کانپتا سا، بھرایا ہوا سا تھا۔ محلوں کا ایک شہزادہ کیوں اپنی جوانی اس خاک میں رول رہا ہے؟ کچھ بیکاریوں کی قسمت میں بھیگ بھی نہیں ہوتی بیٹا۔ جاؤ اپنی سلطنت کو لوٹ جاؤ۔ مجھے اس ماں کی آہ سے ڈر لگنے لگا ہے جس کی پھول سی اولاد کو ہم نے یوں دربدر کر دیا۔ ہمیں معاف کر دو، ہماری خطا بخش دو۔ وہ جانے کیا کچھ کہتی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر روتی رہی۔ زہرا کی آنکھیں تو پہلے ہی برس رہی تھیں۔ اس میں آپ کی کوئی خطا نہیں ہے، میرا مقدر مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، اور تقدیر کی مار مجھے تب تک جھیلنی ہی ہوگی جب تک میرے نصیب میں لکھی ہے۔ بعض سلطنتیں خاک ہو جانے کے لیے ہی ملتی ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں رک نہیں پائیں اور زہرا کو لے کر درگاہ سے نکل گئیں۔ شام کو میں نے مولوی خضر کو بھی اپنی روانگی کے قصد سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن کر وہ بے حد اداس ہو گئے۔ کیا کہوں میاں، مجھے تو تمہیں روکنے کا اختیار بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں چند ہی دنوں میں تم سے کیا عجیب سا قلبی تعلق بن گیا ہے۔ بہرحال جہاں رہو خوش رہو۔ میں نے انہیں بتایا کہ خود میرا دل بھی یہاں سے جاتے ہوئے بہت بوجھل ہو رہا ہے۔ کبھی کچھ انجان سے رشتے بھی کسی سرطان کی طرح تیزی سے خون میں شامل ہو کر رگوں میں اپنی جڑیں بچھا لیتے ہیں۔ کہیں بتائے ہوئے چند دن پچھلے پوری زندگی پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ میں بھی یہاں سے ایسے ہی رشتے اور درگاہ سے کچھ ایسا ہی تعلق بنا کر واپس لوٹ رہا تھا۔ کتنے بندھن بند گئے تھے میرے اس درگاہ سے، کتنے انمول رشتوں کی ٹوکری بھر کر لے جا رہا تھا میں اپنے ساتھ۔ اور پھر وہ ناز آفرین کیا ہوا جو وہ مجھے نہیں مل پائی؟ اس کی محبت کا سدا رہنے والا احساس تو تھا میرے ساتھ۔ کیا آئندہ زندگی کاٹنے کے لیے بھی یہ سب کچھ کافی نہیں ہے؟ میں نے اس رات بیٹھ کر عبداللہ اور سلطان بابا کے نام الگ الگ لفافوں میں 2 خط لکھ کر رکھ دیے۔ ان سے بنا ملے چلے جانے پر معذرت کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ جب میں اپنے اندر کی شرمندگی پر قابو پا لوں گا تو ان سب سے ملنے ضرور آؤں گا۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے دونوں خط مولوی خضر کے حوالے کر دیے۔ وہ بہت دیر تک مجھے گلے لگا کر تھپکتے رہے۔ میں نے ان سے آخری الوداع چاہا تو مسکرا کر بولے، کیوں میاں، واپس اپنی دنیا جا کر ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اور کچھ یاد آئے نہ آئے، لیکن مولوی خضر کے ہاتھ کی بنی صبح کی چائے تو تمہیں ضرور یاد آئے گی، ہے نا؟ ان کی بات سن کر پل بھر ہی میں میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹنے لگے۔ جانے خدا نے ہم انسانوں کا دل اتنا کمزور کیوں بنایا ہے؟ ہم جا بجا خود کو اذیت دینے والے رشتے کیوں پال لیتے ہیں؟ مما اور پاپا نے یوں اچانک مجھے گھر دیکھا تو ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مما کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں مستقل گھر واپس آ گیا ہوں۔ پاپا بھی بہانے سے تصدیق کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے کسی طرح سمجھایا کہ اس وقت شدید تھکا ہوا ہوں اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح میری آنکھ شور ہنگامے سے کھلی۔ حسب توقع مما نے میرے سارے دوستوں کو خبر کر دی تھی اور وہ سب نیچے لاؤنج میں جمع ہو کر چلا کر مجھے نیچے بلا رہے تھے۔ ان کو میرے شرط ہار جانے کا یقین ہی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں ایسی کئی شرطیں جیت کر اور سرخرو ہو کر واپس لوٹا تھا۔
बहरहाल उनके लिए यही काफ़ी था कि मैं वापस लौटकर उनके दरमियान पहुंच चुका हूं। लेकिन क्या मैं वाकई वापस आ गया था? दिन गुजर रहे थे, लेकिन मुझे यूं महसूस होता कि मैं वहां होते हुए भी वहां मौजूद नहीं। घर में, दोस्तों की महफिल, क्लब, पार्टी में, हर जगह जिस्मानी तौर पर पहुंच तो जाता, लेकिन घंटों गुमसुम बैठा रहता। यार दोस्त मेरी खामोशी से तंग आकर लड़ते झगड़ते और मैं यूं ही उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता। लेकिन ना जाने क्यों इन लम्हात में मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं अपनी रूह कहीं दूर छोड़ आया हूँ। सबसे ज़्यादा मसला मुझे नमाज के औकात में होता। एक अजब सी बेचैनी और कसक मुझे घेर लेती थी। तब मेरे लिए घर या बाहर किसी भी महफिल में बैठे रहना दोबर हो जाता। और मसला ये था कि क्लब या घर का माहौल मेरी इस मुश्किल को ख़त्म करने के बजाय मज़ीद बढ़ा देता। ऐसे में मैं घर या महफिल छोड़कर कहीं बाहर निकल जाता, किसी पुरसुकून गोशे की तलाश में। एक ऐसी ही सहपैर जब मेरे अंदर की बेचैनी आखिरी हदों को छू रही थी। मैं गाड़ी लेकर घर से निकला और पता नहीं कब सेंट्रल लाइब्रेरी का बोर्ड देखा। बोर्ड देखकर शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी। हॉल में मुख्तलिफ शेल्फ हर मौजू की किताब से भरे हुए थे। दफतन मेरी नज़र तौसूफ वाले सेक्शन पर रखी किताबों पर पड़ी और मैं यूं ही वर्गर्दानी के लिए एक किताब लेकर एक गोशे में बैठ गया। कुछ सफ़े पलटते तो मेरी बेचैन रूह को जैसे कुछ मरहम मिला। हाँ, ठीक ही तो था। जाने कब से मेरी रूह घायल थी, बीमार थी, और हैरत है कि हम अपनी जिस्मानी बीमारी के लिए तो डॉक्टर के पास दर्जनों चक्कर लगा आते हैं, लेकिन रूह की बीमारी ख़त्म करने के लिए कभी कोई किताब तक उठा नहीं पाते। पहले चंद ही सफ़ों में मुझ पर यह हकीकत आश्कार होने लगी कि तौसूफ की दुनिया हमारी ज़ाहिरी दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हज़ारों लाखों लोग इस दुनिया के बासी हैं, जो हर गर्ज लालच से बेपरवाह होकर इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। इनमें हमारे आसपास फिरते आम लोगों से लेकर आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोग भी शामिल हैं। तौसूफ दरअसल रूह की दुनिया का दूसरा नाम है, और मैं उस रूहानी दुनिया को छोड़कर वापस आ गया था। ये ऐसे लोगों की दुनिया थी जो किसी ओहदे मर्तबे की फ़िक्र किए बगैर हम जैसे भटके हुए इंसानों को उनकी असल राह पर लाने के लिए शायद अबद तक मसरूफ़ रहने वाले थे। जैसे जैसे मैं किताब के सफ़े पलटता गया, मुझे हर सफ़े पर अपने एक नए सवाल का जवाब मिलता चला गया। मुझे पता चला कि मज़हब सिर्फ़ 5 नमाज़ें पढ़ लेने या रोज़े रख लेने का नाम नहीं, ये सिर्फ़ बुनियादी फ़राइज़ हैं जिन्हें अदा करने के बाद मज़हब का असल सलीका और असल निज़ाम शुरू होता है। मज़हब तो बांटने का नाम है, चाहे वो मजहबी तालीमात हों या कोई दुनियावी शय। मज़हब हर नेमत, इल्म और सलीके को दूसरों तक फैलाने का नाम है, और यही काम अब्दुल्ला, सुल्तान बाबा और मौलवी खज़र इस दरगाह की छोटी सी दुनिया के ज़रिए कर रहे थे। और ये सिलसिला लामहदूद था। घरों में, मस्जिदों, दरगाहों, दफ्तरों में, समंदरों, पहाड़ों, साहिलों पर और ना जाने कहाँ कहाँ ये लोग फैले हुए थे, और ना जाने किस किस भेस में मज़हब से दूर और मुझ जैसे भटके हुए लोगों को तालीम दे रहे थे। हमारे लाख धुतकारने, मजाक उड़ाने और शक करने के बावजूद ये धुन के पक्के अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दे रहे थे। और मैं किस कदर बदनसीब था कि इस निज़ाम का एक हिस्सा बनते बनते रह गया। चंद घंटों के बाद जब मैं बोझल दिल लेकर लाइब्रेरी से उठा तो यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कहीं मेरी ये लाइब्रेरी यात्रा भी किसी की दुआओं का असर थी। मौलवी खज़र से जब मैं बहुत ज़्यादा सवाल किया करता तो मेरी सारी तकरार के बदले उनका सिर्फ़ एक जवाब इतना ही होता था, ठीक वक्त का इंतज़ार करो मियाँ, वक्त आने पर कुदरत तुम्हें हर सवाल के जवाब तक खुद पहुँचा देगी। अफसोस कि कुदरत ने मेरे बहुत से सवालों के जवाब तो दिए, पर बहुत देर से, या फिर शायद मैं खुद ही कुछ जल्दबाज निकला।
लाइब्रेरी से घर पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी और जैसे ही मेरी गाड़ी घर के करीब पहुंची, मैंने घर के गेट से सियाह शेवरलेट निकलते देखी। हाँ, वो उसी की गाड़ी थी, लेकिन हमारे घर क्यों? अगले ही लम्हे मुझे उस गाड़ी ने क्रॉस किया तो मैंने आगे ड्राइवर और पिछली सीट पर सिर्फ जहरा की अम्मी को बैठे देखा। कोई और वक्त होता तो मैं उस मारूख की गाड़ी अपने घर से निकलते देखकर शायद खुशी के मारे मेरा दम ही निकल जाता, लेकिन उस वक्त मैं एक उलझन आमेज हैरत लिए घर में दाखिल हुआ। मम्मा और पापा पोर्च ही में खड़े थे, शायद जहरा की अम्मी को रुखसत करने के लिए आए हों। मुझे गाड़ी से उतरता देखकर मम्मा वालिहाना अंदाज में मेरी जानिब बढ़ीं और खुशी से लरसते हुए लहजे में बोलीं, साहिर बेटा, अभी जहरा की अम्मी आई थीं। जहरा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। पल भर के लिए तो मुझे लगा कि सारी ज़मीन घूम रही है और ये आसमान भी कुछ ही पल में मेरे सर पर गिर जाएगा। मेरे माँ बाप मुझे गले लगा लगा कर चूम कर मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं, खुशी से चिल्लाऊं या दुख और अजियत से चीख चीख कर आसमान को रेजा रेजा कर दूं। अपने जज्बात के इजहार का कोई ज़रिया मुझे उस वक्त नहीं सूझ रहा था। मुझे तो ये बात सुनते ही सजदे में गिर जाना चाहिए था। सदियों का सफ़र तय करने के बाद मंजिल पाने वाले को भला और क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी जगह गंग सा खड़ा रह गया। मैं जानता था कि मेरे जहन में इस वक्त सवालों का जो तूफ़ान उठ रहा था, उसका किनारा सिर्फ अब्दुल्ला की ज़ात थी। अगली सुबह मेरी गाड़ी साहिल की जानिब उड़ी जा रही थी। मैं अब्दुल्ला की नई दरगाह की तरफ जाने से पहले एहतियातन उसे शहर वाली साहिली दरगाह पर देखते हुए जाना चाहता था और फिर दरगाह के करीब कार पार्क करते हुए। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। करीम मुझे सीढ़ियों के करीब ही मिल गया, जिसने बताया कि सुल्तान बाबा और अब्दुल्ला दोनों आए हुए हैं। मैं तेज़ी से सीढ़ियां फलांगते हुए दरगाह के अहाते तक पहुंचा तो दूर ही से अब्दुल्ला मुझे किसी शख्स को रुखसत करते हुए दिखाई दिया। वो शख्स पलटा तो हैरत का एक और झटका मेरा मुंतज़िर था। ये तो वही साहब थे जिन्होंने उस दिन बाज़ार में बिना किसी गलती के मुझे सरेआम इस कदर बेइज्जत किया था कि दर्द के मारे मेरे आंसू निकल आए थे। अब्दुल्ला और वो साहब बेक वक्त मुझे देखकर ठिठके और फिर अब्दुल्ला की अज़ली मुलायम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। आओ साहिर मियाँ, खुश आमदीद। अचानक ही वो साहब तेज़ी से मेरी जानिब लपके। गुस्से से मेरा चेहरा तमतमा सा गया, लेकिन ये क्या, उन्होंने आते ही मेरे हाथ पकड़ लिए और निहायत लजाहत से बोले, माफ़ करना बेटा, उस रोज़ तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। सच कहूँ तो गुनाह अजीम किया, पर क्या करता, बंदे को यही हुक्म मिला था। लेकिन आफरीन है तुम्हारे हौसले और सब्र पर। मेरी हर गाली, हर चिरके को दिल पर सहा, लेकिन गोया ये सारा ड्रामा सिर्फ मेरे और जहरा के लिए रचाया गया था। वो साहब रुखसत हो गए तो मैंने अब्दुल्ला की तरफ शाकी निगाहों से देखा। मैं जानता था जहरा की सूरत में तुम मुझे भीख ज़रूर दोगे, लेकिन अगर मुझे भिखारी ही बनाना था तो फिर इतने कड़े इम्तिहान में क्यों डाला? पहले ही दिन जहरा को क्यों नहीं कह दिया कि वो मेरी तरफ पलट जाए? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। सुल्तान बाबा ने सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए उस शख्स को वहाँ भेजा था। वो देखना चाहते थे कि पहले दिन आने वाले जल्दबाज और गुस्सीले साहिर और दरगाह पर चंद हफ्ते जीने वाले अब्दुल्ला में कितना फ़र्क है। जहरा का वहाँ पहुँच जाना सिर्फ एक इत्तेफाक और तुम्हारी किस्मत की बदौलत था। अगर मुझे ये पता ना होता कि अब्दुल्ला झूठ नहीं बोलता तो शायद मैं उस वक्त उसकी इस इत्तेफाक वाली बात पर कभी यकीन ना करता। बहरहाल चाहे वो इत्तेफाक ही से वहाँ आ पहुँची थी, लेकिन सच यही है कि उसका दिल नरम करने में इत्तेफाक ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मैं ये कैसे मान लूँ कि उसकी हाँ के पीछे मज़ीद कोई इत्तेफाक छुपा हुआ नहीं है? अब्दुल्ला मुस्कुराया। अगर तुम उस रोज़ भड़क कर उस शख्स को पलट कर जवाब दे देते तो ये इत्तेफाक तुम्हारे ख़िलाफ़ भी जा सकता था। तुम्हें जो भी मिला तुम्हारे सब्र के अजर में मिला है, और बजाय खुश होने के तुम शक शुबात में पड़कर अपनी जीत का मज़ा भी किरकिरा कर रहे हो। मेरा यकीन करो, मेरी उस लड़की से मुलाकात तो क्या
बात तक नहीं हुई। मेरा दिल बेक वक्त अब्दुल्ला की बात पर यकीन कर भी रहा था और नहीं भी। इतने में सुल्तान बाबा की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ चले गए थे मियाँ, हमारा इंतज़ार तो किया होता। मैं चौंक कर पलटा। वो सामने ही हाथ में तस्बीह लिए खड़े थे। गर्मजोशी से मुझे अपने सीने से लगाया और गाल थपथपाए। मैंने शर्मिंदगी से माजरत पेश की। जब खिलाड़ी हार जाए तो उसे मैदान में खड़े रहकर किसी इशारे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, खुद ही मैदान छोड़ देना चाहिए। इसीलिए आपका सामना किए बगैर ही चला गया था। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। वो खुश दिली से हंसे। अरे नहीं मियाँ, नाराज़गी की तो कोई बात ही नहीं, ये तो दिल का मामला है। तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा। और भाई, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम हार गए हो? तुम्हारी फतह की खबर भी हम तक पहुंच चुकी है। आखिरी जीत तो तुम्हारी ही हुई ना। तुमने जो चाहा आखिरकार उसे पा लिया। जीते रहो। सुल्तान बाबा मेरा कंधा थपथपा कर आगे बढ़ गए। मैं जानता था कि वो मुझे मज़ीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए ज़्यादा देर तक नहीं ठहरे। गोया जहरा के इकरार की उन्हें भी खबर हो गई थी। मेरे जहन में अब्दुल्ला का मखसूस जुमला गूंजा, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। लेकिन मेरी रूह को करार क्यों नहीं मिल रहा था? मेरे अंदर की बेचैनी लम्हा लम्हा बढ़ती क्यों जा रही थी? और फिर जब अब्दुल्ला ने मुझे ये बताया कि वो और सुल्तान बाबा एक अहम मिशन पर बहुत जल्द किसी दूर दराज सफ़र पर निकल रहे हैं, तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, तो फिर पीछे दरगाह का ख्याल कौन रखेगा? मिल ही जाएगा कोई ना कोई अल्लाह का बंदा। सुना है सुल्तान बाबा ने किसी नए अब्दुल्ला का इंतखाब कर लिया है। अब्दुल्ला अपनी धुन में मगन मुझे बताता रहा, लेकिन मेरा दिल तो ये सुनकर ही डूब गया कि अब कोई और दरगाह की रखवाली करेगा। ना जाने अपनाइयत का ये कैसा एहसास था कि मैं दरगाह पर किसी नए अब्दुल्ला की आमद का सुनकर कुछ ऐसे ही बेचैन हो गया जैसे मेरी कोई ज़ाती जागीर लूट कर ले जा रहा हो। मैं टूटे हुए दिल से अब्दुल्ला से फिर मिलने का वादा करके वहाँ से चला आया, लेकिन फिर मेरा दिल किसी भी काम में नहीं लग पाया। घर में पहुँचा तो एक नई खबर मेरी मुंतज़िर थी। जहरा ने अपनी वालदा के ज़रिए पैगाम भिजवाया था कि वो बाकायदा रिश्ता तय होने से पहले एक बार मुझसे मिलना चाहती है। मिलना तो मुझे भी उससे था, क्योंकि हमारे रिश्ते पर छाई हुई धुंध छटने के बजाय बढ़ने लगी थी। मैंने मुलाकात के लिए वही जगह तजवीज़ की जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, और अगले दिन शाम ढले हम दोनों दरगाह की सीढ़ियों से कुछ फासले पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। जहरा की अम्मी ड्राइवर समेत ऊपर दरगाह की हाज़िरी को जा चुकी थीं। आज वो नाज आफरी अपनी जबी पर कोई शिकन लिए बगैर नज़रें झुकाए मेरे सामने खड़ी थी। क्या अब मुझे अपनी तकदीर से कोई गिला बाकी रह जाना चाहिए था? पल भर ही में मेरी नज़रों के सामने उस परी की नाराज़ी, धुतकार और उससे हुई आधी अधूरी मुलाकातों के तमाम मनाजिर घूम गए। लेकिन आज वो मेरे सामने उस बादशाह की तरह खड़ी थी जो मैदान जंग में शिकस्त के बाद दूसरे शहंशाह से कहता है कि उससे वही सलूक किया जाए जो बादशाहों का शेवा है। मैंने उसकी लरसती पलकों पर नज़र डाली। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इस फैसले में किसी तरहम आमेज़ जज्बे की मिलावट नहीं है। ये मेरा अपना फ़ैसला है, लेकिन मेरा माजी आपके सामने पूरी तरह आया है, लिहाजा अब फ़ैसला आपका होगा। क्या आप मुझे मेरे माजी समेत कबूल कर पाएंगे? मेरा पिछला जुनून कभी ताना बनकर आपके लबों पर तो नहीं आ जाएगा। अपने ज़र्फ़ के पैमाने की वुसअत जांच कर ही कोई फ़ैसला कीजिएगा। मुझे दोनों सूरतों में आपकी राय से इत्तफ़ाक़ होगा। उसने एक ही पल में सारी बातें कर डालीं। अब मैं उसे क्या बताता कि मेरे ज़र्फ़ का इम्तिहान तो कुदरत ने उसी दिन से लेना शुरू कर दिया था जब मैंने पहली मर्तबा उसे देखा था। ज़र्फ़ का पैमाना वसी ना होता तो शायद हम दोनों आज यूं एक दूसरे के सामने खड़े ना होते। लेकिन मैं आपसे सिर्फ़ एक सवाल करना चाहता हूँ।
یہ رشتہ صرف تن پر حکمرانی تک رہے گا یا پھر مجھے روح کا غلبہ بھی حاصل ہوگا؟ میری بات سن کر وہ چونکی اور نظریں اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ اس کی وہ پہلی نظر تھی جو صرف میرے لیے تھی، صرف ساحر کے لیے۔ اس کے لب ہلے، روح پر قبضہ پانے میں تو کبھی کبھی صدیاں بھی لگ جاتی ہیں ساحر۔ تو پھر میں مزید صدیاں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ میرے انتظار کی منزل تک میرا انتظار کر پائیں گی؟ میری بات سن کر اس کا گلابی چہرہ کچھ اس طرح کھل گیا جیسے سوچ اور تفکرات کے سبھی بادل ایک دم ہی چھٹ گئے ہوں۔ سوچ لیں، میرے پاس انتظار کے لیے زندگی پڑی ہے، لیکن کیا آپ روح سے روح کے رشتے کے لیے اتنا بڑا جوا کھیل پائیں گی؟ نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نتیجہ جو بھی ہوگا تو آپ کی روح کا ہی، اور میں اس دربار میں اپنا سر تسلیم ازل ہی سے خم کر چکا ہوں۔ اس کے پنکھڑی سے لبوں پر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک مسکراہٹ ابھرتی دیکھی، دنیا کی سب سے حسین مسکراہٹ۔ وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میری دعائیں سدا آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن پھر وہ وہاں رک نہیں پائی اور سلام کر کے چل دی۔ اپنی تقدیر پر جتنا پیار مجھے اس لمحے آیا، شاید زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔